Welcome students to my channel. Uh, this is my third lecture. We were doing nature and significance of management. In that we completed the definition of management. Then we did the nature of management, which is around 7 headings, and we also did the short form for nature of management, UG square C HDS. Then we also completed in the last lecture importance of management, which is having 8 headings, but you have to learn only 6 headings, right? Here also in this question we did I gave you the short form CA no U. Okay, I have given short form for the whole all the headings, but you need to just learn any of the 6 headings. Okay, now we move on to the next part of the chapter, the next concept, which is this very important, and many a times questions are asked related to this triangle. Okay, that means now we do levels of management. Okay, levels of management means what are the various stages of management or in an organization when management is done, that at which level what kind of management is done and who does the management. Okay, so that's what is levels of management. Now it is in the form of a triangle. If you see over here, okay, it is in the form of a triangle. So management is done at 3 levels. There is top level management, there is middle level management, and at the end you have, at the bottom you have the bottom level management. Okay, सबसे last में है bottom level. Now if you see, this is in the form of a triangle. Why it is not a square, why it is not a circle? Okay, why it is in the form of a triangle? Because सबसे नीचे के लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव डाउन द लेवल, दैट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं. दैट्स व्हाई यू हैव द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ओके, विथ मैक्सिमम एरिया. देन उसके ऊपर थोड़े कम लोग होते हैं हु आर वर्किंग एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ओके, so that's why the area of the, if you see that in the triangle the area becomes a little lesser, and at the top you still have, in fact the top level management में सबसे कम, मतलब बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, काफी कम लोग होते हैं जो top level management में काम कर रहे होते हैं. So if you see, that is the top of the triangle. Okay, now what does this mean? This means that at the top, if you see any organization, the organization can be divided at 3 levels. Okay, you have the top level managers, then you are management, then you have the middle level management, and then you have the lower level management, और उनके नीचे होंगे एम्प्लॉयज. ठीक है, तो सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है, उसमें कौन आएगा? तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द चेयरमैन, ओके, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO जिसको बोलते हैं, all of them they come at the top level, in the top level management. ठीक है, then at the middle level manager or middle level management, whom do you have? You have the various departments जो भी होते हैं उन कंपनी में, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं, they will come under middle level management. तो उसमें सारे आ गए, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. Okay, all of these they come in the middle level management, and at the last, at the bottom you have the lower level management, जिसमें आएंगे सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर एक्सेट्रा. मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स है, दैट इज द परचेज ऑफिस, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, तो उनके अंडर में भी ऑफिसर होंगे, या उनके अंडर में भी कोई सुपरिटेंडेंट होंगे या सुपरवाइजर होंगे. ठीक है, सो दे विल कम अंडर द बॉटम लेवल मैनेजमेंट, एंड देन आफ्टर द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट देन यू हैव द एम्प्लॉयज. ओके, सुपरवाइजर्स के अंदर में फिर देयर विल बी एम्प्लॉयज, और ऑफिसर्स के अंडर में देयर विल बी एम्प्लॉयज. सो दिस वे यू हैव द 3 levels of management. The top level management
the middle level management and the bottom level management. This is the levels of management in any organization. For your understanding, what we can take example of your school. For example, in your school also there is a top level management, there is middle level and there is lower level. How? देखो, at the top level management कौन आएगा? आपके trustees, आपके स्कूल को जो मैनेज करते हैं, जो ओन करते हैं, they will come at the top, in the top level management. Okay, that is your trustees of the school. Then at the middle level management, who will come? At the middle level management, principal. Okay, you may have a, or for a particular section there are principals. Like for example, you have prep section principal in charge of prep section. Then there will be another person in charge for primary section. Then you have another person in charge for the secondary, and then you have higher secondary. So this way, for the in the whole school there are various departments: prep, primary, secondary, higher secondary, and the head of all these sections of they may be called as principals, or they may also be called as in charge, okay, or coordinators, that way. और उनके अंडर में कौन आएंगे? उनके अंडर में कौन काम करते हैं? टीचर्स. सो फॉर द प्राइमरी सेक्शन और prep section you have a section of teachers, then you have a section of teachers for primary, then the secondary, and then the higher secondary. So they will come under the bottom level. और उनके नीचे आएंगे आप जो भी स्टूडेंट्स हैं वो. Okay, so this way, if you take the example of school, at the top you have trustees or principal also you can take. Then at the middle level you have the coordinators, and at the bottom level, okay, then you have the teachers. Okay, now इसके आगे अगर कोई हम ऑफिस का अगर हम ये ले एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इट्स वेरी सिंपल. एट द टॉप यू हैव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देन यू हैव द मिडिल लेवल पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके जो भी मैनेजर्स हैं दे विल कम. उनके अंडर में आएंगे जो मैनेजर के अंडर में काम करने वाले ऑफिसर्स है दे. एंड देन उनके भी अंडर में आएंगे कौन? उनके अंडर में आएंगे फिर द एम्प्लॉयज. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज important because it is asked in board. Explain for 2 marks it can come. Explain the levels or state the levels of management. Then you have to draw this triangle and then state the levels of management. और हर एक level of management में कौन कौन आता है, okay, कौन who are the ones who are responsible for top level management, middle level and bottom level, that you have to write. Okay, next is okay, role of levels of management. First in the triangle, जो ट्राइंगल था उसमें हमने समझा कि भाई टॉप में कौन आता है, मिडिल में कौन आता है और बॉटम लेवल में कौन कौन लोग आते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि इनका भी क्या काम है. व्हाट आर द फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय टॉप लेवल, बाय द मिडिल लेवल एंड बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट. अच्छा, मैंने क्या किया है, इसको एक आई हैव डन अ डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही लिया है. आप इसमें से भी लर्न कर सकते हो, और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक. एंड इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो दे हैव गिवन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट का जो भी डिफरेंस है, दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन लर्न. ओके, तो सबसे पहले देखो टॉप लेवल का क्या काम होता है. अगर ट्रस्टीज है स्कूल के, तो वो क्या काम करते हैं? उनका काम होता है कि स्कूल से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है, डिसीजंस है, वो लेना. ठीक है, तो वो उनका काम है. ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, पॉलिसीज फ्रेम करना, दैट इज द जॉब ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है. और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? दे गिव रिकमेंडेशन टू द टॉप लेवल. अभी देखो जो टॉप लेवल पे काम कर रहे होते हैं, अभी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लोग जो भी है, दैट मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलो, जनरल मैनेजर बोलो, सीईओ बोलो. ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आर दे इन टच विद ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द अदर एम्प्लॉयज? नहीं. ओके, वो डायरेक्टली कोई उनका सभी एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है. तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी अगर कुछ भी अगर उनको सजेशंस चाहिए, तो वो किधर जाएंगे? तो दे विल गो टू द एक्सपर्ट्स. ओके,
तो ये एक्सपर्ट्स कौन है? तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो हमने मैनेजर्स अपॉइंट किए वो उसके एक्सपर्ट्स है. सो ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं हु आर दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर डिपार्टमेंट. सो दे गिव रिकमेंडेशन और दे गिव देयर सजेशंस टू द टॉप लेवल. ये टॉप लेवल पे जो काम कर रहे हैं दे आर नॉट नोन टू एवरीथिंग, दे आर नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स. ठीक है. सो द डिपार्टमेंट वाइज जितने भी मैनेजर्स है दे गिव रिकमेंडेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ओके, वॉट एवर डिसीजंस लेना है एंड ऑल, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना है, पॉलिसीज डिसाइड करना है, सेल्स टारगेट डिसाइड करना है, प्रोडक्शन डिसाइड करना है, पूरे साल भर में क्या करने वाले, कितना प्रोडक्शन करेंगे. तो ये आप ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया नहीं ये साल तो हमारा इतना प्रोडक्शन होगा या हम इतना सेल्स टच कर लेंगे, हम ये मार्केट में एंटर कर दें, ऐसा नहीं चलता है. राइट. यू हैव टू सी व्हाट इज द एक्चुअल ग्राउंड लेवल सिचुएशन. वो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन आपको नहीं पता है, आपको उसके लिए उसके मैनेजर के पास जाना पड़ेगा. Okay, so that's why top level management take recommendations from the middle level management. Okay, and what does the lower level management do? They don't do anything, but they are just there and they are there to implement the decisions which the middle level managers, or they are just there to implement whatever the middle level managers have asked them to do and accordingly direct the workers. जैसे एक कंपनी है, ओके, अगर कंपनी में टॉप लेवल में डिसाइड हो गया है कि भाई इतना प्रोडक्शन पूरे साल भर में होना चाहिए, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका काम है ये देखना कि ओके अगर पूरे साल भर में इतना प्रोडक्शन का एम दिया गया है या इतना हमें करना है, देन व्हाट इज द मिडिल लेवल मैनेजर जो प्रोडक्शन मैनेजर है ही विल डिसाइड कि ओके ये इतने मंथ्स में इतना प्रोडक्शन होगा, ये मंथ में इतना होगा, ये मंथ में इतना होगा, ऐसे हर मंथ का जो भी प्रोडक्शन है वो डिसाइड करेगा एंड अकॉर्डिंगली दैट प्रोडक्शन मैनेजर विल डायरेक्ट द सुपरवाइजर एंड दैट सुपरवाइजर को उसको टारगेट दिया गया है कि भाई वर्कर्स से इतना काम करवा के आपको लेना है. सो दैट्स व्हाट द सुपरवाइजर विल डू. ही विल डायरेक्ट द वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज एंड सी विल सी टू इट कि जो मिडिल लेवल पे जो प्रोडक्शन मैनेजर ने जितना बोला है उतना वो काम वर्कर्स से करवा के ले. Okay, so that is top level, middle level and lower level management mein. That is the first difference. That is, first is the top level decides the objectives and policies and for that it is the middle level who gives them the recommendations and lower level manager, lower level pe jo supervisors hai, superintendent hai, they will actually give the work to the workers. Okay, and they will give direction and guide the workers to complete the work. Okay, now top level managers jo hai, they will mobile. What is the next? What are the other things that they do? Second, if you see the function, top level managers will assemble resources, है ना, क्योंकि they are at the topmost level, so they are aware about lot of things. अगर कोई नया मशीन खरीदना है तो कहाँ से खरीदेंगे, अभी वो थोड़ी क्या मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स का, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे जो काम करे दे आर नॉट गोइंग टू गिव देम they are not going to be of any help. It is a top level who has to think, he has to find out ways in which he can get the machine at lower cost. Okay, so this way to assemble or to collect the resources, that is the job of the top level. The second is, what is the job of the middle level? They have to execute the policies and plans. मतलब execution का काम middle level करेगा. जैसे अभी मैंने बताया production कितना होगा, that is decided by the top level. So what does the middle level do? Middle level has to implement the decisions taken by the top level. Okay, and what is the job of the lower level? Lower level has to also see to it that the work is actually, क्योंकि middle level पे तो जो काम managers है वो ऑफिसर्स को बता देंगे, भाई देखो वर्कर्स से इतना काम करवा के लो. काम एक्चुअली करने वाले हैं वर्कर्स, ठीक है, तो उनका मोरल डेवलप करना, उनको बूस्टेड रखना, उनको इंस्पायर करना, पॉजिटिव यू हैव टू गिव देम अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. तो ये सारा देखने का काम करेगा ये सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर एट लोअर लेवल. सो ही डेवलप्स द मोरल ऑफ द वर्कर्स. Then the third part is here, it is written over here, does mostly the work of thinking, planning and deciding. So the brain of the organization is top level. Okay,
And what does the middle level do? They coordinate the activities of all the departments. So the middle level पे जो managers है, production, purchase, sales, marketing, advertising, what they do? They work in coordination with each other, all the managers. Okay. And what is the work of the lower level superintendents, supervisor? They are the link. They are the link between the workers and the middle level. ओके सो व्हाट हैपेंस, अब जैसे ही वर्कर्स को काम दिया, अपने टारगेट दे दिया, टॉप लेवल ने तो टारगेट दे दिया, मिडिल लेवल पे मैनेजर ने अपना टारगेट सुपरिटेंडेंट को बता दिया, सुपरिटेंडेंट ने अभी वर्कर्स को बोल दिया कि भाई दिस वे यू हैव टू डू द वर्क, बट द वर्कर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म, दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. तो वो वर्कर्स क्या करेंगे? थोड़ी क्या वो टॉप लेवल पे जाने वाले, दे कैन नॉट गो टू द टॉप लेवल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक तो नहीं पहुंचने वाले. वो किसको बोलेंगे? दे विल टेल द सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर, एंड दैट सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म और विल टेक दैट कंप्लेन और दैट प्रॉब्लम टू द मिडिल लेवल. मिडिल लेवल अगर अपने अपने तक वो इफ ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही विल सॉल्व इट. बट अगर वो नहीं कर पाएगा सॉल्व, देन ही हैज टू टेक द मैटर टू द टॉप लेवल. So that's why lower level managers are actually a link between the workers and the middle level management. ठीक है. The next is over here it's written, the fourth point is जो top level managers है, they are spending more time in planning and organizing. Yes, maximum time जो है top level का वो किस में जाता है? वो लोगों को मैनेज करना, वर्कर्स को मैनेज करना, किसने छुट्टी ली, क्या किया, ये सब का काम, ये सब देखने का काम उनका नहीं है. उनका काम क्या है? प्लान करो साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, आगे कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, ये प्लानिंग करना, और प्लान के हिसाब से जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसको कलेक्ट करना. मेन काम टॉप लेवल मैनेजर्स का ये रहेगा. ओके. एंड व्हाट इज द okay, here in the middle level management, here it is written, they act as a link between the top and the lower level. Yes, जो भी problem है lower level, see, employees take their problem to the superintendent, superintendent takes the problem to the middle level managers, it is the managers who are working. Now managers, they act as a link between the top level and the middle level. तो सबसे पहले आएगा top level management, उसके बाद आएगा मिडिल लेवल, और उसके बाद आएगा लोअर लेवल, और उसके भी नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो है एम्प्लॉइज. तो वर्कर्स को अगर कोई कंप्लेन करनी है, वर्कर्स को अगर कोई इश्यूज है, तो वो सीधा टॉप लेवल ऐसा नहीं जाएंगे, वो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक नहीं जा सकते. तो व्हाट डू दे गो टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, दैट इज द सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर. देन दैट लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ लिंक and they go to the middle level management. That middle level management then acts as a link between the lower level and the top level and takes the problem to the top level. Clear? So yes, first is these top level managers, they spend maximum time in planning and organizing, whereas in middle level managers, they spend maximum time in coordinating things, to seeing that the department works properly. That is what their work is. And communicating, एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है, तो वो काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का है. एंड इन लोअर लेवल मैनेजर्स, दे इन्फॉर्म द वर्कर्स अबाउट द डिसीजंस विच आर टेकन बाय द मैनेजमेंट. देखो अभी मिडिल लेवल मैनेजर्स का क्या काम, मैनेजर्स नहीं सॉरी, सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर, इनका क्या काम है? उनका काम ये है कि डिसीजन जो लिया गया है उसको वर्कर्स तक पहुंचाओ, वर्कर्स को बताओ क्या काम करना है. वर्कर्स अगर कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उनके डिमांड्स को सुनो, ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वर्कर्स के उसको सुनो और उसको सॉल्व करो. दैट इज द वर्क ऑफ द सुपरिटेंडेंट एंड सुपरवाइजर. दैट इज द इन्फॉर्म्स द वर्कर्स अबाउट द डिसीजंस व्हिच आर टेकन बाय द मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, difficulties, feelings, demands, etc. of the worker. मतलब he looks into the problems of the workers. Okay. Then what does the top level do? They make long term plans. इनका प्लानिंग, जब भी ये प्लान करने बैठेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे. मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 20 years का इनका जो भी प्लानिंग रहेगा वो इट विल रन इनटू 5 to 20 years का प्लानिंग रहेगा. What does middle level managers do? They also make plans.
पर उनका प्लानिंग जो रहता है वो इट इज जस्ट फॉर 1 to 5 years का। एंड लोअर लेवल मैनेजर्स जो है वो कोई अपना प्लान वैन ऐसा नहीं बनाते। उन्होंने तो क्या है कि जो प्लान ऑलरेडी मिडिल लेवल मैनेजर्स ने जो प्लान बनाया है उसी प्लान को इनको वर्कर्स को बता के इनको डायरेक्ट करके कंट्रोलिंग करके यू हैव टू सी कि भाई जो टारगेट मुझे दिया गया है वो मुझे इनको वर्कर्स से वो टारगेट जो है वो पूरा करवाना है। ओके, सो मोर टाइम इन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Okay, who has the maximum authority? Definitely, it is a top level who has the maximum authority and responsibility. They are the top or final authority in the organization. Middle level managers, yes, they do have authority, but the limited authority and responsibility is there. ऐसा नहीं कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। ओके, हाँ, कुछ हद तक डिसीजन ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एट टाइम्स दे हैव टू ऑल्सो गो टू द टॉप लेवल। दे आर नॉट द कंप्लीट अथॉरिटी। एंड एट लोअर लेवल मैनेजर्स दे हैव वेरी लिमिटेड अथॉरिटी। दे डू नॉट हैव टू मच ऑफ अथॉरिटी एंड they just have to do the work as per the guidance of the middle level managers. Okay, one more thing I forgot. I was discussing this prepares plans. So first is top level prepares plans for 5 to 20 years, middle level prepares plans for 1 to 5 years, and yes, and bottom level जो है ये prepare करते हैं plan weekly and monthly। क्योंकि क्या होता है कि सभी अपने हिसाब से अपने लेवल पे सभी थोड़ा बहुत प्लानिंग करके ही काम करते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि इफ यू डोंट प्लान समथिंग देन यू मे एंड अप नॉट अचीविंग द टारगेट। इसलिए सारे जो भी लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट है, मैनेजर्स है, टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे ऑल डू अ प्लानिंग। बस फर्क इतना है कि दे वर्क फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। टॉप लेवल डज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मिडिल लेवल डज शॉर्ट टर्म, एंड लोअर लेवल पे जो काम करे दे डू प्लानिंग फॉर मंथली और फॉर वीक ऑन वीकली बेसिस। एंड येस, आई हैव कम टू अगेन टू दैट पार्ट ऑफ अथॉरिटी। मैक्सिमम अथॉरिटी इज विद द टॉप लेवल एंड limited authority is with the middle level, and lower level has even less authority. They don't have any authority as such. Okay, and who is reporting to whom? Top level doesn't have to report to anybody. Okay, middle level managers, yes, they are directly responsible and they are reporting to the top level, board of directors, chief executive officers, and so on. And lower level managers, they are reporting to the middle level managers. Okay, so this way here if you see there are around 6 to 7 I have written the differences. ये difference के form में ही किया है। इसी को तुम functions बना के भी लिख सकते हो। अभी क्या होता है, many a times they ask functions of top level, और ये कितने मार्क्स का आएगा ये भी बता रही हूँ। जनरली टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस दे आस्क फॉर 2 मार्क्स मोस्टली। कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, लेकिन मोस्टली 2 मार्क्स में पूछते हैं वो। ओके, तो 2 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। यस, व्हाट कैन कम एज अ 3 मार्कर ऑल्सो इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्टूडेंट, बिकॉज ये पूछते ही है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? So this is what, and I have also, if you see the slide here, I have underlined certain words. Those are key words. बस ये keywords याद रखो तो याद रह जाएगा डिफरेंस भी। सबसे पहला है जो फर्स्ट पॉइंट इज के ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज जो है दैट द टॉप लेवल मैनेजमेंट डज, मिडिल लेवल डज द रिकमेंडेशन, lower level just directs the workers. Second, mobilizing and arranging for resources is done by top level. Execution of policies and plans is done by middle level, and lower level पे the workers जो भी superintendent या supervisor है they just work, okay, and they try and develop the morale of the workers. Next third में है maximum time of top level management जो है they are doing the thinking and planning, so they are the brain of the organization. Okay, and and middle level पे जो है they do coordination, मतलब उनका maximum time coordination और communication में जाता है। and lower level पे जो workers है they are the
लोअर लेवल पे जो भी सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट है, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल. Okay, so this way all the 6 to 7 points are there. I'm not repeating it again because एक बार आप ये लर्न कर लोगे, टेक्स्ट बुक से करोगे तो भी इजी है, इसमें से करोगे तो भी चलेगा. बोथ आर द सेम, मोर और लेस सेम, ज्यादा कोई फर्क नहीं है. टेक्स्ट बुक का भी लैंग्वेज इजी ही है. ओके, सो विद दिस देखो, पहला आपको ये याद रखना है बिकॉज दिस कम्स फॉर 2 marks दैट यू मेक दैट ट्राइंगल. ओके, सेकेंड आपको क्या याद रखना है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का मीनिंग जो आपको टेक्स्ट बुक में से रेफर करना है. टेक्स्ट बुक में बराबर मीनिंग दिया हुआ है बिकॉज ये हमें मीनिंग इसलिए लर्न करना है बिकॉज इट ऑल्सो कम्स फॉर 1 mark. ठीक है, सो दैट्स वाई यू हैव टू लर्न द मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. Okay, now we move on to the next part of or the next concept, which is management as a science, as an art and a profession. अब मैंने इसको भी एक स्लाइड में ही बनाया है, but actually how it is asked I'll tell you. Management as a science, management as an art and management as a profession, ये तीनों जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस है. ठीक है, they can ask as such. 2 marks के लिए आ सकता है मैनेजमेंट एज अ साइंस, 2 marks के लिए आएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एंड फॉर 3 marks दे विल आस्क यू मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. व्हाट दे विल से, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ साइंस, एक्सप्लेन. और मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक्सप्लेन. ओके, हाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, एक्सप्लेन. ओके, तो वो जो प्रोफेशन वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू कम फॉर 3 marks. बाकी साइंस एंड आर्ट विल कम फॉर 2 marks. ओके, तो why is मैनेजमेंट कॉल्ड अ साइंस? सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो व्हाट इज साइंस स्टूडेंट? साइंस में क्या होता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, लैब में जाके पहले हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करके उसका फिर एनालिसिस करके उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाल के देन अ प्रिंसिपल कम्स आउट. ओके, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उसके बाद बनता है, राइट? सो साइंस में एक सिस्टमैटिक तरह से यू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, यू ऑब्जर्व सर्टन थिंग्स, देन ऑब्जर्वेशन से एनालिसिस एंड एनालिसिस से कंक्लूजन, एंड फ्रॉम दैट कंक्लूजन कम्स द प्रिंसिपल्स. Okay, so same way management is also science, right? Because management maybe there are certain principles. In fact, your next chapter is going to be principles of management. तो ये there are certain, ऐसा नहीं कि management में तो जैसा वैसे करो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं रहेगा. There will be certain principles which are followed by organization when they do management. And these principles are given by writers, authors, okay, जिन्होंने मैनेजमेंट को इन डेप्थ में पढ़ा है, जिन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा है. Okay, these authors have given these management principles, and through their knowledge, through their experience, they have given their these principles of management. So जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स है वैसे ही मैनेजमेंट में भी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो सकता मैनेजमेंट में, लेकिन थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू ऑब्जर्वेशन. ओके, there are authors and there are great authors who have come out with certain principles of management. Okay, so that's why like management जिस तरह से एक साइंस में जिस तरह से एक सिस्टमैटिक स्टडी है, थियोरी है पूरी एक, वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक थियोरी है, एक सिस्टमैटिक तरह से प्रिंसिपल्स है जिसको हमें फॉलो करना है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन करता है. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ साइंस. हाउ आर यू गोइंग टू राइट दिस? ये 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट लिखोगे 2 मार्क मिल जाएंगे. ठीक है, पहले तो साइंस क्या है उसको एक्सप्लेन करो, उसके बाद ये बताओ कि किस तरह से मैनेजमेंट को हम साइंस के साथ रिलेट कर सकते. क्लियर? सी हियर इट इज रिटन. Science means systematic and specialized knowledge. Science is a subject where rules and principles are divided and cause and effect relationship is established. Cause and effect relationship मतलब ये हुआ इसकी वजह से ये होगा,
So that what is cause and effect relationship. Okay, like science, management has its own specific principles. Through these principles, coordination of human resource, machine, capital, method, etc. is done. तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए मैनेजमेंट में द मैनेजर्स, द टॉप लेवल मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी लोग हैं, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स है वैसे मैनेजमेंट में भी है. Thus, management is a science according to George Terry. Science teaches one to know. है ना, साइंस से हम when we study science, we come to know about certain things. Okay, we educate ourselves about certain things. We get knowledge. The same way management is a science because management में भी हम जब management करते हैं, we come to know, we get knowledge. Okay, there are certain principles जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट कर सकते हैं. The next is management is an art also. Okay, now what is an art? Art is basically a skill which you perform. Okay, creative skills, उसको हम आर्ट बोल सकते हैं. तो आर्ट में हमें एक्चुअली वो स्किल को परफॉर्म करना होता है. साइंस में हमें जो भी थियोरी पार्ट होती है और आर्ट जो होता है वो प्रैक्टिकल पार्ट होता है. तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी है. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स तो है हमारे पास मैनेजमेंट के, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने खुद के स्किल्स को भी यूज करते हैं. ओके, टू मैनेज सर्टन थिंग्स. ओके, टू डू मैनेजमेंट करते वक्त वी आर यूजिंग अवर प्रिंसिपल्स. जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको तो हम यूज करते ही है, वो थियोरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना स्किल्स भी यूज करते हैं. ओके, दैट इज एन आर्ट. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट. देखो यहाँ लिखा है 3 पॉइंट्स में डिसाइड लिखना है. आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, but to implement the skill one should also have the theoretical knowledge. So that's why you need to have the theoretical knowledge. That means science. Okay, only theoretical knowledge is not sufficient. For implementation of knowledge, technical art is necessary too. That means what? You have understood the theory part. Okay, लेकिन theory part को implement करने के लिए practical होना, practical भी चाहिए, and that's why it is an art. The manager needs to make necessary changes as per his personal skill and proficiency. According to Doherty, art teaches one to do. Art से हम we learn to do things. Principles को बेस रख के हम देखेंगे ओके ये प्रिंसिपल ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कैन आई यूज, अगर मैं यूज करूँ तो मुझे ये किस तरह से यूज करूँ. That is what is an art. So that's why management is an art. Okay, तो ये 3 हो गए. Management is a science. Sorry, 2 we completed. Management as a science and management as an art. The last is management is a profession. These days, management there are अभी तो competition इतना बढ़ गया है. There are so many big organizations. There is so much competition around that अभी managers also have to improve their skills and knowledge, and they also have to keep on sharpening their skills. इसके लिए management now has become a profession wherein there are certain institutions like IIM, Indian Institute of Management, जहाँ से आप एक डिग्री ले सकते हो मैनेजमेंट की और उसके बाद you can start working in big organizations. Okay, so because profession किसको बोला जाता है? Profession is what हमने किया था लास्ट ईयर है ना. प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. दैट इज व्हाट इज प्रोफेशन. सो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. व्हाई? बिकॉज यस, देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड ट्रेनिंग, नॉलेज, एजुकेशन, ओके, टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर. So that's why management is a profession. Why? यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स में आएगा और 3 मार्क्स के लिए आपको ये मैंने जो ये 5 हेडिंग्स जो मैंने जस्ट आई हैव एनलिस्टेड, बट दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, ऊपर के 2 पॉइंट नहीं लिखोगे ज्यादा तो चलेगा, लेकिन ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरे लिखने हैं. ये 3 मार्क्स में आएगा. ओके, प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज,
in a specific field is acquired and it is used for the welfare of the entire. ये पूरा नहीं लिखोगे तो चलेगा, is acquired तक लिखो, ठीक है. Management is developing an independent profession, is developing into an independent profession that is beneficial to the individual, society and entire country. इतना नहीं लिखना है आपको, इधर तक ही लिखो. मैनेजमेंट इज डेवलपिंग एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन. अब उसके बाद ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टेक्स्ट बुक में से आपको थोड़ा वन लाइन लिखना है. सो दैट यू हैव टू राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन? द फर्स्ट, एंड मैनेजमेंट में इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज. मैनेजमेंट में है, yes, because you go to a specific institute, get BBA, MBA degree from reputed university or institutes and get that specialized knowledge. Okay, so that's why requirement of specialized knowledge is there. उसके बाद increase in knowledge and research. Yes, you increase when you go and you study in these universities and you get that MBA degree and all, you are increasing your knowledge and your research. Third, professional association. Yes, you do get, you come across various other managers, okay, other students who want to get associated or want to become managers and all. इनके आप और एक professional association के आप member भी बन जाते हो. Okay, and the last is moral responsibility. As managers, there are certain moral responsibilities that you need to perform. बस ये देखो 5 पॉइंट है, इसके वन लाइन का जो भी आंसर है वो आपको टेक्स्ट बुक में से लर्न करना है, ठीक है. सो टुडे इन दिस लेक्चर आई कंप्लीटेड, इनफैक्ट आई कंप्लीटेड थ्री आंसर्स यहाँ से और ये आंसर. तो आई थिंक आई कंप्लीटेड अराउंड 4 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. उसके बाद डेट 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. Okay, one more thing I want to explain. That is the last part and then I complete the lecture. Okay, that is कभी कभी ना वो ऐसा पूछते हैं in exam. They ask explain how management is a science as well as an art. तो yes, management is a science as well as an art. तो अभी ये 2 marks के लिए सपोज आता है तो क्या करेंगे, ये जो मैंने दिए है ना पॉइंट्स, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट के, उसको थोड़ा कट शॉर्ट करके एक दूसरे को, ये दोनों को क्लब करके लिखना है आंसर, ठीक है. थोड़ा थोड़ा ही लिखना है पर दोनों को मिक्स करके लिखना है, थोड़ा कम लिखना. क्लियर? देन ऑल्सो इट विल बी राइट. बिकॉज पर ऐसा मत बोलो कि नहीं मैडम ये तो आपने नहीं बोला था कि दोनों है, दोनों तो है ही. समझ में आया? इसलिए कभी बहुत रेयरली आता है ये क्वेश्चन, जनरली तो उनका यही रहता है, ये दोनों ही क्वेश्चन मेन है और ये थोड़ा 3 मार्क्स में ये पूछते हैं प्रोफेशन वाला. तो वो तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही आपको लर्न करना है, ठीक है. सो विद दिस स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीटेड द लेक्चर. आई होप यू लाइक्ड माय लेक्चर. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव मी support. Okay, I'm trying my best and to provide you the lectures in the best and the most interesting way. And if you have liked my lecture today, also enjoyed my lecture, then please subscribe to this channel. Thank you.